Good morning, dear students. Your Sanila ma'am is back. So I hope you all are well. You're all staying safe at home. So today's class we are going to start a new lesson in English. So Sanila ma'am is back with a new lesson in English, that is the unhappy dog. Okay. So today we are going to read this, understand this, plus we will do the warm up exercise, and we'll try max to complete the lesson today. If not, we'll read the half part and then we'll complete in next class. Okay. So without wasting the time, we will just directly jump into the lesson. Okay. So all of you take out your book, semester 1 book, take out page number 53, that is lesson 7, the unhappy dog. Till that, when you are taking out your book, I will write down the heading plus page number, and then I will write down the question regarding the warm up exercise. Okay. So what is the question? What is the lesson name? What is the lesson name? Lesson 7, the unhappy, not 53, page number 52. Okay, unhappy dog. Okay, lesson 7, the unhappy dog. I will write the page number here. Page number 52. Page number is 52. Okay. So, first of all, I'll explain about the warm-up exercise. Then I will make you do that. Okay. You have to do along with me. Okay. You are not supposed to wait or you'll do after watching the video. You have to do it along with me, so that it will give you more, clarification regarding the question. Because when you are watching the video in whole and then afterwards you are completing your work, no, it is just like copying something. But when you are doing it along with me, no, it is like you are only doing it. You are using your brain. Okay. So the first question, that is warm up exercise. Okay. Before that, I want to explain you about the topic. The lesson name is the unhappy dog. What do you mean by dog? Yes, that means a dog, a puppy, है ना? कुत्ता जो हम बोलते हैं, right? इसके अलावा unhappy means, what do you mean by an unhappy dog? Unhappy means, unhappy, it could be anyone, no? Not only the dog, it could be a person also. Even I can be an unhappy person, है ना? You can be an unhappy student, anything, है ना? But unhappy, what is the meaning of unhappy? Unhappy means not satisfied, not pleased, जो खुश नहीं है, जो satisfied नहीं है, जो उसके पास चीज़ें हैं उससे. Like, for example, जब आप लोग स्कूल आते थे, आप लोगों के पास सारी चीज़ें होती थी. आपके मामा पापा पेंसिल, इरेजर, बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब आपको लेके देते हैं. आप सारी चीज़ें लेकर आते हो. But sometimes, no, some of the students or some of your friend is bringing one colorful pencil or colorful eraser, some kind of eraser that is having a good smell. Okay, तो ऐसे कुछ चीज़ों को देख के आपको अंदर से एक greedy feel होता होगा. Why I am not having that? I also want that. उसके बाद घर जाके आप क्या करते हो? You just start you just become a stubborn kid and you just keep asking your parents for that. That I also want that kind of pencil. I also want that kind of eraser. Like, so that means you are not satisfied with what you are having, right? But it doesn't mean that you are unhappy. Why? Because you are having sufficient things. You should be happy with that. You should not be complaining every time, because it is very unfaithful. Okay? Yes. So this is the meaning of the topic, meaning of the heading of the lesson. That is, what is unhappy, not satisfied or not pleased, like that. Okay. So आगे हम जब lesson पढ़ेंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि what is the meaning of the lesson. ठीक है? What is the story about? Heading से समझ में आ रहा है, it is a story about a dog, right? Yes. और dog का picture भी बना हुआ है book में on page number 53, right? So हमें इससे समझ में आता है कि हम एक dog के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, so before that, first of all, we'll do the warm-up exercise. In warm-up exercise, what is given is, take the things that you can do and cross the ones you cannot. अब आपको 6 things दिए हुए हैं, जिसमें से आप जो कर सकते हो उसको right tick लगाना है, जो नहीं कर सकते उसको cross करना है. ठीक है? So the first thing is, I can swim. First line is, I can swim. Can you swim? No. Yes, we can swim, but not in that way. If we are talking about the thing that is related to the lesson. So in lesson, a fish is given. Can you swim like that fish? No.
So that's why we are giving here a cross. ठीक है? Then second one is I can dance. Yes, we can dance. We are humans. We can dance very well, right? Yes. Then I can fly. Can you fly? No. For that you need aeroplane or a helicopter, right? Still there is no wings, right? हमारे पास wings नहीं है ना? हमें किसी चीज की मदद से fly करना पड़ेगा. So here we'll cross it. Okay? Next is I can sing. Yes, you can sing. You have a good throat. You have your voice. You can sing, right? Yes. Then I can run. Yes, we can run. We have 2 legs. We can use them, right? Yes. So tick right on that. Then I can skate. Yes, you can skate. There are skateboards, है ना? Skate shoes are there. You can use it and you can skate, right? Yes. So we can tick a right here. Okay. So only 2 crosses are there and 4 right ticks are there. So swim आप नहीं कर सकते और fly आप नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हो. But swim आप कर सकते हो if you learn how to swim. But we are talking about a natural thing that is related to the lesson. Okay. That's why we have crossed here. अदरवाइज इसके अलावा आप सोचते हो तो हाँ हम स्विम कर सकते हैं, लेकिन इट इज रिलेटेड टू द लेसन. अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है? सो नाउ विल स्टार्ट द लेसन. ओके, रीडिंग पार्ट इज ओके. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. राइट 2 थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू बट यू विश टू डू. अब देखो, आपको एक क्वेश्चन ये भी दिया है वार्म अप एक्सरसाइज में कि आपको कोई ऐसे 2 चीजों का नाम लिखना है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने देखा फिश. फिश क्या है? स्विम कर सकती है. उसको देख के आपका मन करता होगा कि कंटिन्यू आप स्विम कर पाते या आप पानी में ही रह पाते फुल डे, लेकिन आप नहीं कर सकते, राइट? इसी तरह से और ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं सकते? तो ये आपको खुद से लिखना है. सबकी अपनी अपनी विशेस है, तो आप अपना यहाँ पे विश लिख सकते हो. ठीक है? नाउ विल स्ट्रेटली मूव टुवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द लेसन. ठीक है? It is a long lesson, so we'll read half of the part and then remaining in next. Okay. Snoopy was Raj's pet dog. He was white in color with brown spots on his body. Snoopy was Raj's pet dog. So here comes Snoopy. Snoopy is a dog, है ना? हमने जैसे अभी देखा कि लेसन में हम डॉग के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, है ना? सो उस डॉग का नाम क्या है? स्नूपी. ओके, सो स्नूपी इज द डॉग. और वो किसका डॉग है? राज. ही वॉज वाइट इन कलर विद ब्राउन स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी. और वो स्नूपी का कलर क्या था? वाइट. ही वॉज कम्प्लीटली वाइट बट ही वॉज हैविंग ब्राउन डॉट्स एवरीवेयर इन हिज बॉडी, है ना? ही वॉज वाइट विद अ बेस वाइट कलर एंड देन ब्राउन स्पॉट्स वर देयर ऑन हिज बॉडी. One day Snoopy was lying on the grass. एक दिन की बात है, स्नूपी घास पे लेटा हुआ था. In the garden में. He saw a cat walking on the high wall of the garden. तभी उसने देखा एक बिल्ली को. Cat means बिल्ली. Walking on the high walls of the garden. Garden means बगीचा. कोई घर पे भी होता है, हमारे स्कूल में भी है, राइट? तो गार्डन के सराउंडिंग जो वॉल बना था, जैसे आपके स्कूल में घर पे दीवार होता है, उस तरह से एक वॉल बना हुआ था. उस वॉल के ऊपर वो कैट वॉक कर रही थी. ठीक है? सो उसे उसने देखा. स्नूपी थॉट इट मस्ट बी सो नाइस टू बी हाई अबव द ग्राउंड. इफ ओनली आई कुड क्लाइंब लाइक दैट कैट. सिंस ही कुड नॉट क्लाइंब ही फेल्ट सैड. उसने उस बिल्ली को देख के क्या सोचा कि इतने ऊपर, ग्राउंड से भी इतने ऊपर वॉक करना या उतने ऊपर होना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत मज़ा आता होगा ऊंचे हाइट पे. हाँ वो, लेकिन तभी अच्छा लगेगा जब मैं भी उस बिल्ली की तरह चल पाता. उसने ऐसा सोचा. ठीक है? क्योंकि वो उस दीवार पे नहीं चढ़ सकता था, लेकिन बिल्ली चढ़ पाई, है ना? नेक्स्ट डे ही वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर विथ राज. अब दूसरे दिन क्या हुआ? वो गार्डन नहीं गया. वो कहाँ गया? एक रिवर गया. रिवर के साइड से वॉक कर रहा था वो राज के साथ. ठीक है?
he saw some fish swimming in the river. उसने देखा कि कुछ मछलियां नदी में, river means नदी में तैर रही थी, swimming means तैर रही थी. He thought, how I wish I could live in the cool water. Since Snoopy could not live in the water, he felt bad. अब वो फिर से सोचने लगा उन्हें देख के कि कितना अच्छा होता ना अगर मैं भी दिन भर ठंडे पानी में रह पाता. अफसोस मैं नहीं रह सकता क्योंकि मुझे ना तो स्विमिंग आती और ना मैं पानी में इतनी देर रह सकता हूँ. मैं ब्रीथ कैसे करूँगा, है ना. सो फिर से वो उदास हो गया. ही फेल्ट बैड. ही थॉट ही वॉज नॉट लकी लाइक द फिश. और उसने क्या सोचा कि वो फिश की तरह लकी नहीं है. ठीक है. अब उसे तो नहीं पता ना कि फिश क्या सोचती है. मे बी फिश सोचती होगी काश कि मैं धरती पे होती, मैं चल रही होती, मेरे भी हाथ पैर होते. राइट. तो अब कह नहीं सकते हम, लेकिन डॉग वॉज वेरी अनहैप्पी क्योंकि पहले तो वो बिल्ली की तरह दीवार पे नहीं चढ़ पाया, उसके लिए अपसेट हो गया. उसके बाद अब फिश को देख के कि मैं दिन भर ठंडे पानी में नहीं रह सकता, उसके लिए वो अपसेट हो गया. राइट. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53. आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ अ जिराफ प्लकिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री. प्लकिंग मीन्स तोड़ना. फूल निकालते हैं, पत्ते निकालते हैं हम पौधों से, उसको कहते हैं प्लकिंग, तोड़ना. ठीक है. टू रिमूव और टू टेक समथिंग फ्रॉम दैट, फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज. ठीक है. आफ्टर फ्यू डेज ही सॉ अ जिराफ. उसने कुछ दिनों बाद एक जिराफ को देखा. और क्या देखा कि वो ही वॉज प्लकिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री. और वो क्या कर रहा था, एक ऊंचे पेड़ में से पत्ते तोड़ के खा रहा था. जिराफ ऑब्वियसली लीव्स दे ईट, राइट. ही सेड वाओ व्हाट अ लॉन्ग नेक द जिराफ हैज. उसने कहा वाओ जिराफ की कितना लंबा नेक है. ही कैन ईजिली रीच आउट एंड प्लक द लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज. और वो आसानी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकता है और पत्ते तोड़ सकता है. एवरीथिंग मस्ट बी सो ईजी फॉर हिम. तो इसने क्या सोचा कि उसके लिए सारी चीजें ईजी होती होगी. बट ऐसा है क्या? नो. वाई? जिराफ की हाइट अच्छी है, नो डाउट. उसका नेक बहुत लंबा है, नो डाउट. वो ऊंचे ऊंचे हाइट तक पहुंच सकता है, नो डाउट. वो आराम से अपने काम कर रहा है, खाना उसने तोड़ के खा लिया खुद से, फाइन है. बट कभी सोचा है अगर उसे किसी छोटे से शेड में बैठना हो, किसी छोटे से स्पेस में फिक्स होना हो, तो क्या वो उसमें घुस पाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसकी नेक बहुत बड़ी है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा वहाँ पे. राइट. इसी तरह से स्नूपी को भी वो चीज़ समझना चाहिए था, लेकिन स्नूपी ने नहीं समझा. स्नूपी ने फिर से अपसेट कर लिया अपने आप को कि मेरी तो हाइट इतनी छोटी है, वो कितना लकी है, मैं कितना अनलकी हूँ, है ना. यस. आफ्टर सम डेज स्नूपी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल. अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, स्नूपी एक बॉल के साथ खेल रहा था. इन द गार्डन में अ स्पैरो फ्लू पास्ट हिम. अब एक स्पैरो आया उड़ते हुए. स्पैरो मीन्स चिड़िया. Seeing Snoopy playing, the sparrow said aloud, I wish I could play all day long like this dog. अब स्नूपी को खेलता हुआ देख के उस स्पैरो ने जोर के चिल्लाया और कहा कि काश मैं भी इस डॉग की तरह लकी होती और रोज दिन भर खेलती रहती. But I have to work hard. Every day I have to search for food and water. I have to build a nest for my family. I feel tired after flying so long. लेकिन वो बर्ड की प्रॉब्लम क्या थी? वो नहीं खेल सकती रोज. क्यों? क्योंकि उसको कोई बार बार उसके हाथ में या उसके सामने खाना ले जाके नहीं देता. उसको एवरी डे खाना ढूंढने जाना पड़ता था. एवरी डे उसको उड़ उड़ के दूर दूर जाना पड़ता था खाने के सर्च में. उसको अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए या फिर अंडे देने के लिए उसे छोटे छोटे घोंसले बनाने पड़ते थे. और वो एट टाइम्स टूट जाते हैं तो उसे वापस उसको रिबिल्ड भी करना रहता था. दूर दूर उड़ के जाके वो तिनके उठा के ला के जोड़ जोड़ के उसका घर बनाती थी, है ना. सो उसको डेली हार्ड वर्क करना पड़ता था. उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो खेल सके, है ना. सो द बर्ड वॉज सेइंग दैट हाउ लकी द डॉग इज. ही कैन प्ले ऑल डे लॉन्ग एंड ही विल इजीली गेट द फूड एंड वाटर, है ना. उसको पानी और खाना भी इजीली मिल जाएगा. आई फील टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग सो लॉन्ग. और वो चिड़िया कह रही कि इतना उड़ने के बाद मैं तो इतना थक जाती हूँ कि खेल तो मैं बिल्कुल नहीं सकती. टाइम नहीं है उसके पास, प्लस अगर टाइम है भी तो वो इतना थक जाती कि वो नहीं खेल सकती. सो इस चीज़ को लेके चिड़िया बहुत उदास है ना. लेकिन अगर यही चीज़ स्नूपी ने पहले चिड़िया को देखा होता तो स्नूपी क्या सोचता, चिड़िया कितनी लकी है, दिन भर उड़ती रहती है, ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ती है, उसको कितना अच्छा लगता होगा, वो ये सोचता. लेकिन क्या उसको पता है कि चिड़िया इतना ऊंचा क्यों उड़ती है, दिन भर क्यों उड़ती रहती है, क्या करती है, कितना हार्डवर्क करती है ना. यस. सो अभी आज हम सिर्फ इतना रीड करेंगे
till this you have to, matlab, as far as I have taught you, you have to read it at least for 2 to 3 times. As I have told you earlier, I will be asking you in online classes to read the lesson, है ना? So what you have to do is read the lesson and try to understand the new words, है ना? Later I will be explaining you more, but as far as I have taught you, you have to read and you have to understand, and you also have to practice this. This time there will be no excuse. In last lesson, some of you were not reading at all, and even after the so many notifications, then also you were not reading it properly. So now this time I will not accept any excuses. I will not entertain with this. You have to read it, you have to practice, and you will be reading this lesson during the online classes. Okay? Yes. So this is for today. Good day everyone.